मेजरमेंट ऑफ द हियरिंग, सिंपल, मतलब कीप इट सिंपल, आई एम जस्ट आस्किंग। अभी जैसे पूछा ना टिम्पैनोमेट्री, यू हैड नो आइडिया कि व्हाट इज इट, बट द आइडिया इज इनसाइड द नेम ओनली, टिम्पैनोमेट्री. So basically what is tympanometry? It is a test to measure the functionality of the middle ear, okay, in response to the changes in the pressure in the external ear. Means how the middle ear behaves if we change the pressures in the external ear. Three compartments: external, middle and inner. We are measuring the functionality of the middle ear in response to changes in the pressure in the external ear. So to change the pressure in the external ear, what we need? What is the requirement? That is how the test will be done. So it comprises of an apparatus or a appliance that has a probe that sits snugly inside your extra-auditory canal, just like in the ear head, जो आपके ईयरफोन्स होते हैं, ईयरबड्स जिसको बोलते हैं, उस टाइप का, that sits snugly inside your extra-auditory canal. And what you are doing is, so the instrument has a probe tip, okay, that tip fits inside the extra-auditory canal, just outside, and it fits snugly, means there is no leak. Pressure changes करने हैं ना, तो just neither too tight not too loose, just snugly fit करेगा. इसीलिए we will have to change the bud size according to the patient. Okay? Now that probe has 3 channels. One channel is to give the sound impulse. One channel is what we are measuring. We are measuring the functionality of the middle ear, how the middle ear is functioning. So the next channel will be for changing the pressure in the extra-auditory canal. Okay, and the third channel is called the microphone that collects the sound which it had generated, the amount of which is being reflected from the tympanic membrane. Understood the principle? A sound is projected on the membrane and we are measuring the amount of reflection of sound the instrument is getting back. ठीक, if everything is normal, तो उसका एक पैरामीटर होगा कि इतना गया इतना आया, that is normal. If there is some problem in the membrane or the middle ear, तो क्या होगा? The reflected energy here, that will be less or more. दोनों हो सकता है. More कब होगा? Less कब होगा? Just common sense. एक पर्दे पे आप साउंड प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो रिफ्लेक्शन उससे कब होगा और रिफ्लेक्शन कब कम होगा, मतलब थ्रू एंड थ्रू पास कर गया. वेरी गुड. या तो कोई परफोरेशन हो कि साउंड रिफ्लेक्ट ही ना कर पाए, उस तरफ चला गया, ठीक, और कब हो सकता है अगर मेम्ब्रेन लैक्स हो, रिफ्लेक्टेड एनर्जी विल बी लेस, क्योंकि एडमिटेंस बढ़ जाएगा उसका. एडमिटेंस क्या होता है? दो चीज होता है एडमिटेंस. एक होता है रेजिस्टेंस. एडमिटेंस मतलब अलाउइंग, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिंग. ठीक, सिंपल फिजिक्स. ठीक, तो जिसका एडमिटेंस ज्यादा, एडमिटेंस कब ज्यादा होगा? जब मेम्ब्रेन जो है अगर वो लेस टॉट हो तो एडमिटेंस ज्यादा होगा. अगर मेम्ब्रेन इज मोर टॉट देन एडमिटेंस लेस होगा. अगर मेम्ब्रेन में कोई लीक हो तो क्या होगा? एडमिटेंस ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा एनर्जी चला जाएगा. अगर मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड हो, ठीक, तो एडमिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा? कम होगा ना, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्ट करेगा. समझ में आया बात? तो इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है टू मेजर द फंक्शनिंग ऑफ द मिडिल ईयर. ठीक, तो उस प्रोब में क्या क्या 3 चीजें हैं? वन इज साउंड, प्रिसाइसली 220 हर्ट्ज का साउंड प्रोजेक्ट किया जाता है. दूसरा
to a microphone that means receives this reflected sound. तीसरा प्रेशर चेंज करने का, ठीक। तो ये तीन चीजें उसमें हैं। नाउ कम्स, वो कहाँ गया शायन, कहाँ गया, इसी बैच में है ना, नहीं है। आई विल शेयर द ग्राफ देन। सो इट हैज टू एक्सेस, ओके। व्हाई आई एम शेयरिंग इज कि आपके पास रहेगा, यू कैन रिवाइज इट एनी टाइम। This type of picture question will be there. In NEET also it will be there, and in exam also, our exam also it will be there. आपसे पूछा जाएगा what is the diagnosis, okay, या explain the tympanometric finding. So what do you see in the graph? What do you see in the x-axis? Pressure. So what I said, 3 probes, one for delivering the sound, one for receiving the sound, and third one is for pressure changes in the canal. Okay. So the x-axis has what? Change in pressure. तो जो भी प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर है, दैट इज टेकन एज 0. अगर हम पॉजिटिव प्रेशर इंट्रोड्यूस करते हैं कैनाल में तो दैट इज प्लस के तरफ जाएगा, नेगेटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव के तरफ जाएगा, ठीक। अच्छा, y एक्सिस पे क्या है? कंप्लायंस और एडमिटेंस, मतलब कितना एनर्जी डेसिपेट हो गया, कितना उसको मिला वापस प्रोब को, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ्स के इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। सपोज करो एक सिचुएशन है जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मतलब मिडिल ईयर में कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मीन्स द ऑसिकल्स आर, दे हैव डिसकंटिन्यूटी अमंग देम, कोई ना कोई ऑसिकल जो है वो नेक्रोज कर गया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर में जब हम साउंड देंगे, मैंने क्या बोला, उसका कंप्लायंस बढ़ जाएगा, एडमिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो जो ए डी टाइप का ग्राफ है, देखो ग्राफ में ए डी लिखा हुआ है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज्ड कंप्लायंस। आपको इंटरप्रिटेशन बोलना, इन्फ्रेंस बताना है, रटना नहीं है, ठीक है। प्रेशर 0 पे है लेकिन कंप्लायंस क्या हो रहा है, ग्राफ के बाहर चला जा रहा है, बाहर जा रहा है, या उसमें एक लेवल होता है उसके ऊपर चला जा रहा है, ठीक। ये कब होगा, सपोज करो ऑसिकल्स अगर डिसकंटिन्यू हो गए हैं या मेम्ब्रेन बहुत लैक्स हो गया है, ठीक है, टॉट नहीं है, दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक। तो तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा, उसका इन्फ्रेंस बोलना होगा, और किस कंडीशन में, नेम 2 कंडीशंस वेयर यू सी दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग, या नेम 1 कंडीशन, ठीक। क्लियर पहला वाला। नाउ सेकेंड जो है, पहला वाला देखो जिसमें ए डी लिखा हुआ है, ठीक। एक्स एक्सिस पे कहां पे है, वो 0 पे है, वाई एक्सिस पे कहां है, कहीं मीट नहीं हो रहा है, ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रेशर बट कंप्लायंस इज इंक्रीज्ड, ठीक। तो क्या होगा ये, जस्ट इमेजिन करो कब होगा ये अब प्रेशर किस चीज का प्रेशर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में ही कंप्लायंस बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा होगा भाई, कोई ना कोई जिससे वो मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा है, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो अगर नहीं हो, जो टॉटनेस है वो चला जाएगा। तो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में हो सकता है वो, या मेम्ब्रेन ही बहुत लैक्स हो गया, इजिली मोबाइल टाइप का हो गया है, ठीक है, उस कंडीशन में हो रहा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड जो है वो है नॉर्मल, मतलब जो कंप्लायंस है दैट इज मेजर्ड इन ml, ठीक है, मिलीलीटर वॉल्यूम जो है उसका, वो जो है जितना डेजिग्नेटेड होता है उतना ही है। मैंने बोला एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक बॉक्स है, अच्छा इसमें वो बॉक्स रहता है, जो सेकेंड वाला जो है जिसमें टाइप ए लिखा हुआ है,
ठीक है, तो उसको नॉर्मली 1 लिया जाता है, ठीक है, और 0.5 ऊपर 0.5 नीचे उसके एक बॉक्स होता है। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मेम्ब्रेन लैक्स है, कितना लैक्स है उसमें डिपेंड करता है, इसलिए जो ग्राफ होता है उस बॉक्स से अगर बाहर चला गया तो हाइपर मोबाइल मेम्ब्रेन, उस बॉक्स से नीचे रह गया तो लेस मोबाइल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर उस बॉक्स के अंदर ही है 1 के लेवल पे तो दैट इज नॉर्मल। तो टाइप ए ग्राफ इज नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड नॉर्मल मिडिल ईयर फंक्शन, ठीक। टाइप ए भी दिया जाता है, ठीक है। तो ए डी इज व्हाट, पहले बोलोगे क्या आपने देखा और फिर बोलोगे कौन से कंडीशन में मिलेगा। तो एडी में क्या बोलोगे, नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज कंप्लायंस, ठीक, और इसमें क्या बोलोगे, नॉर्मल कंप्लायंस नॉर्मल प्रेशर, ठीक। तो डी ए, ऊपर से इसको सिंपल एंड निमोनिक दास, डीएस दास, हाँ, ऊपर का ए डी, फिर टाइप ए और नीचे का ए एस। अब डी फॉर डिसकंटिन्यूटी भी है, ठीक है, याद करने में इजी। ए डी है ना, डी फॉर डिसकंटिन्यूटी, तो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में मिलेगा। ए तो नॉर्मल हो गया, एस, एस मतलब क्या हो रहा है, अब नहीं, पहले बोलो क्या दिख रहा है उसमें, नॉर्मल प्रेशर, या और अच्छा बोलोगे क्या बोलोगे, compliance is decreased at normal pressure, the compliance of the tympanic membrane is decreased at normal middle ear pressure, ठीक। तो उसमें क्या होगा, कब होगा वो, जब वो ज्यादा है फिक्स्ड हो जाए, उसमें लूज हो जा रहा है, इसमें फिक्स हो जा रहा है, तो ये कब होगा, ये वेरी गुड, ऑसिकुलर स्क्लेरोसिस में हो सकता है, ठीक। समझ में आया डिफरेंस, कैसे इसको रीड करते हैं, ठीक। या फिक्सिसिटी ऑफ द हेड ऑफ मैलियस या ओटोस्क्लेरोसिस, ये सब कंडीशन में तुम्हें क्या मिलेगा, एएस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये तुमको अगर 0 प्रेशर है तब ये 3 ग्राफ मिलेंगे, नॉर्मल, डिसरप्शन एंड स्क्लेरोसिस, 3 तरह के, ठीक है। अब आते हैं जो एक फ्लैट लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं बी टाइप ग्राफ। क्या कहते हैं, बी टाइप, जो एक लंबा लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक। अब ये कब मिलता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, देखो कंप्लायंस जो है क्या हो रहा है, कंप्लायंस एक ही रह रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर हम डिक्रीज किए जा रहे हैं, ठीक है, बट डिक्रीजिंग प्रेशर पे भी एक ही कंप्लायंस रह रहा है। तो ये कब होगा, थोड़ा सा सोचो, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लायंस में, मोबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये कब होगा, सोचो। अगर कोई परफोरेशन होगा तो क्या होगा, तुम प्रेशर चेंज करो, होगा चेंज, क्योंकि वो तो सील बन नहीं पा रहा है ना, परफोरेशन है, तो फ्लैट टाइप ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कब मिलेगा, एफ्यूजन में, जैसे इसने बोला, सही बोला, एफ्यूजन के स्टेट में ऐसा मिलेगा, ये डिक्रीजिंग कंप्लायंस, डिक्रीजिंग प्रेशर के साथ थोड़ा कंप्लायंस इंप्रूव कर रहा है, लेकिन ग्राफ तब भी फ्लैट है, ठीक। तीसरा ग्राफ है टाइप सी ग्राफ। अब हाँ, इसमें बोलोगे इट इज अ फ्लैट टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, और टाइप बी ग्राफ, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा एडवांस हो गया, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर फ्लैट ग्राफ में दोनों रहे ऑप्शन, ये परफोरेशन भी है या ओएमई है, तब कैसे पता करो, उस केस में उस ग्राफ में किसी कॉर्नर पे लिखा रहेगा एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम, ईसीवी, ठीक है। तो तुमको एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम उस समय हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये ओएमई है या परफोरेशन है। और परफोरेशन और ग्रोमेट दोनों में आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि वो भी तो एक हाइड्रोजेनिक परफोरेशन है ना, ग्रोमेट समझते हो, ठीक। आपने
एक रेंट करके उसमें एक ग्रोमेट इंस्टॉल किया, तो दैट इज ऑल्सो परफोरेशन, वहां भी मिडिल ईयर में फ्लैट ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई बिटवीन ओएमई एंड परफोरेशन। ठीक है, तब आपको क्या हेल्प करेगा, एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम। ओएमई में एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, परफोरेशन में एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मिडिल ईयर का भी जो वॉल्यूम उसमें इंक्लूड हो जाएगा परफोरेशन के वजह से। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बात, इतना क्लियर है। तो उस ग्राफ में जिसमें ये एमसीक्यू बेस्ड है, अगर एमसीक्यू में रहेगा ये, तो वहां पे आपको देखना होगा कि एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम कितना है। अब व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, दैट इज अराउंड 0.6, मतलब 0.6 से लेके 1.5 ml तक होता है। एनीथिंग मोर देन दैट इज इंक्रीज्ड कैनाल वॉल्यूम इन एडल्ट्स। ठीक है, 0.6 से 1.5 ml, तो ईसीवी 2.0 ml, और ये फ्लैट ग्राफ है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, पहला ओएमई, सेकेंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, तीसरा ग्रोमेट, चौथा बोथ बी एंड सी। ठीक, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। अब कितने तरह के ग्राफ्स हो गए, 4 हो गए ना, एएस, एडी, बी, चौथा पांचवा जो है दैट इज सी। सी क्या है, टाइप सी, नेगेटिव प्रेशर में कंप्लायंस नॉर्मल और इंक्रीज हो रहा है। ये कब होगा, जस्ट विजुअलाइज करो कि तुम कैनाल के अंदर नेगेटिव प्रेशर दे रहे हो, मतलब मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींच रहे हो। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है, उधर, वेरी गुड, इन अ रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये होगा। ठीक है, या अगर यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन है, ठीक है, तो टाइप सी कब मिलेगा, इन अ रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट इज ए टाइप ग्राफ, एएस नॉर्मल टाइप ए, एंड एडी कौन से डिजीज में वो मिल रहा है ये। ठीक, बी टाइप में क्या इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि परफोरेशन के टाइम पे कौन सा ग्राफ मिलेगा टिम्पैनोमेट्री में, आप बोलोगे बी, वेरी गुड। अब वो परफोरेशन है कि एफ्यूजन है, वो कैसे डिटरमिन करोगे, हम बी टाइप ऑफ ग्राफ के साथ ईसीवी देखेंगे। अगर ईसीवी रेज्ड है तो परफोरेशन हो जाएगा, अगर ईसीवी नॉर्मल है तो ओएमई हो जाएगा। ओके, और तीसरा सब ग्रुप क्या है, टाइप सी, वो कब मिलता है, यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन में या रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पैनिक। रिट्रैक्टेड है, आपने नेगेटिव प्रेशर डाल के उसके रिट्रैक्शन को थोड़ा रिलीज किया, ठीक है, या अगर यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन है, उधर रिट्रैक्शन है, मतलब रिट्रैक्शन में नेगेटिव प्रेशर है, आपने और फर्दर इधर नेगेटिव किया, तो उधर इसके मुकाबले उधर पॉजिटिव हो गया, तो कंप्लायंस इंप्रूव हो गया। समझ में आया बात, ठीक। तो इफ यू come to our OPD, we'll be showing this audiometer also and tympanometer also, both दोनों है, इंस्टॉल हो गया है, जब पोस्टिंग लगेगा तब आना, ये दोनों चीजें दिखाया जाएगा। ठीक है, something called as impedance audiometry, what is it, what is impedance audiometry, that one was pure tone audiometry, तो what is impedance audiometry, चलो तुम लोग को मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है, I'm sharing just now, this is मतलब MCQ ओरिएंटेड, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको हम अगले बार डिस्कस करेंगे। आज जाओ, इसको पढ़ो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मिला सबको, ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, आई तक है ना, कहाँ तक है, हाँ आई तक है, ए से लेकर आई तक है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और क्वेश्चन है उस सिनेरियो में, उस मतलब उस कंडीशन में कौन सा वाला ग्राफ सबसे अच्छा मैच करेगा। जैसे पहला वाला सॉल्व करते हैं एक तो, हाँ, लेफ्ट ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन इन एन एडल्ट, द राइट ईयर इज नॉर्मल, ब्लू वाले में देखो,
लेफ्ट ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन इन एन एडल्ट, राइट ईयर इज नॉर्मल। तो राइट ईयर, अब इसमें थोड़ा जूम करो, देखो पहला वाला जो ए है ना, ए, उसमें दो ग्राफ है ना, ए वाले बॉक्स में दो ग्राफ हैं, दो है ना बगल बगल में, फिर बी वाला है। तो ए वाले में जो बगल बगल में है उसमें एक में आर लिखा हुआ है, एक में एल लिखा हुआ है, छोटा सा, है ना, ठीक। तो वो है राइट ईयर लेफ्ट ईयर। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, राइट ईयर इज नॉर्मल। तो तुम्हें देखना है कि सबसे पहले इन सारे टिम्पेनोग्राम्स में राइट ईयर नॉर्मल किसमें किसमें है, बताओ। सी में है, सी में है राइट ईयर नॉर्मल, सी में है, और किसमें है, ई में है, वेरी गुड, एफ में है एंड आई में है, ठीक, करेक्ट। हाउ टू सॉल्व इट आई एम जस्ट टेलिंग यू। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, पैथोलॉजी क्या है, लेफ्ट ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन इन एन एडल्ट। एडल्ट को इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओएमई जैसे ही आया एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम के साथ आएगा, वो बच्चे का अलग होगा, एडल्ट का अलग होगा, ठीक। मतलब बच्चे का करीब 0.5 कम होगा, एडल्ट का 0.6 to 1.5, बच्चे का 0.6 to 1.2 के अराउंड, ठीक है। तो एडल्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तब ओएमई में कौन सा होता है ग्राफ, फ्लैट टाइप, बी टाइप। हाँ, अब देखो इसमें बी टाइप ग्राफ लेफ्ट ईयर में किसका है, ए का है, नहीं है, ओके, बी में है, नहीं है, सी में है, सी में नहीं है, सी में है, ठीक। और ऊपर में देखो उसी ग्राफ के जस्ट ऊपर में ECV 1.3 लिखा हुआ है, 1.3 इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड इन द एडल्ट रेंज, ठीक। तो सी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। क्वेश्चन में जो ब्लू वाला है उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी में है, डी में है लेकिन डी इज नॉट क्वालिफाइंग बिकॉज राइट ईयर इज नॉट नॉर्मल, ठीक। उसके बाद ई में है, एफ डायरेक्टली किसमें है, अब आई में है। अब उसको बढ़ा करके देखो, ECV क्या है 0.9, वो भी क्वालिफाई कर रहा है, 0.6 to 1.5 बोला, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। अगर मान लो इसमें अगर 0.1 हो जाता तो क्या हो जाता, दो कंडीशन हो सकता था, ECV एक्सटर्नल कैनाल वॉल्यूम एब्नॉर्मली कम हो गया, बच्चा हो सकता है, या और क्या हो सकता है, वैक्स। समझ में आया बात। तो इस इतना इंपॉर्टेंस है इस टेस्ट का, आप इससे बहुत सारे पैथोलॉजीज को डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये हो सकता है। इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वाला करें, बोलो सेकेंड क्या है, राइट आईएस जॉइंट डिसआर्टिकुलेशन, लेफ्ट ईयर इज नॉर्मल। तो पहले देखना क्या है कि लेफ्ट ईयर कौन कौन से ग्राफ में नॉर्मल है, ठीक है। किसमें है, ए में है, बी में है, ठीक, सी में है, नहीं है, डी में है, ठीक। तो ए, ठीक, ए ही होगा, क्यों, क्योंकि उस बॉक्स से ऊपर देखो, सुनो आराम से सीक्वेंस में फॉलो करना, इतना इजी नहीं हो, एग्जाम में भी हमेशा पीसफुली, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि डिफरेंस बहुत माइन्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। ए होगा इसका आंसर, ओके। उसके बाद बायलैटरल यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन में क्या होता है, सी टाइप। अब बायलैटरल ही ये है, तो दोनों राइट एंड लेफ्ट में सी होगा, कौन सा वाला है, डी तो फ्लैट टाइप ग्राफ है, वो नेगेटिव कहां जा रहा है, नेगेटिव है लेकिन उसमें कंप्लायंस कहां है, वेरी गुड, किसने बोला, जिसने भी बोला बहुत अच्छा है, ठीक ठीक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बायलैटरल पेटेंट ग्रोमेट इन सिटू, मतलब
दोनों तरफ बी ग्राफ होगा, टाइप बी, लेकिन क्या देखना है उसमें, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है किससे, ओएमई से। ईसीवी रेज होना चाहिए, अगर ईसीवी रेज नहीं है तो ओएमई हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, ईसीवी रेज्ड है, ठीक है। और कोई एच नहीं है, जब नहीं है तो वो फ्लैट ग्राफ है, अलोंग द बेस लाइन एकदम। और दूसरा इंडिकेशन क्या है उसमें, ईसीवी देखो, हाई है, दोनों में हाई है, तो दो हो गए इसके, ठीक है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, एक एक करके भी रहेगा ठीक है, समझ में आया बात, बोथ ऑफ देम भी रहेगा और वन ऑफ देम करके भी रहेगा, और नन ऑफ देम भी रहेगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया ये। तो B इज, मतलब कभी कभी एकदम अलोंग द बेस लाइन भी रहेगा तो उसको B ही लेंगे, कोई लाइन नहीं भी है तो उसको B लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, नॉर्मल राइट ईयर इसका होगा, ठीक है, नॉर्मल राइट ईयर होगा। तो देख लो इसमें नॉर्मल राइट ईयर कौन सा ग्राफ है, C है और लास्ट वाला है, C और I है, F वाला को ठीक है, F वाला तो देख के ही बाहर हो जा रहा है क्योंकि उसका जो लेफ्ट ईयर वाला ग्राफ है वो इंक्रीज कंप्लायंस का है, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन वो भी है, राइट ईयर नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें देखना है कि C और I में से कौन सा है। तो क्या, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो क्या होगा इसमें टिम्पैनिक बल्ज कर गया तो क्या कम होगा, ईसीवी कम होगा। देखो 0.9 और 1.3, लेकिन इसमें दोनों होगा, क्यों, क्योंकि ईसीवी का तो रेंज कितना है 0.6 से 1.5, तो उसके हिसाब से 1.3 भी तो कम है, और 0.9 भी नॉर्मल है। तो जब ऐसा डायलेमा हो और बोथ ऑफ देम रहेगा तो बोथ ऑफ देम सिलेक्ट करना है, कि बोथ ऑफ देम आर इन द नॉर्मल रेंज। नहीं, आप 0.9 को भी नॉर्मल बोल रहे हो, तो आप 1.3 को भी नॉर्मल बोल रहे हो, तो आप 1.3 को क्यों ले रहे हो। अगर एक ऑप्शन रहे तब आपको 1.3 लेना है, सॉरी 0.9 लेना है, लेकिन अगर दोनों रहे 0.9 एंड 1.3 दोनों रहे ऑप्शन में, ठीक है, मतलब बोथ ऑफ देम भी रहे तो आपको बोथ ऑफ देम लेना है, ठीक। लास्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन बायलैटरल, मतलब बी टाइप ग्राफ होगा और जिसका कैनाल वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा वो, मतलब ग्रोमेट वाला, जो ग्रोमेट में जो था वही वाला इसका आंसर होगा, है, हाँ जो भी था, मेरे को याद नहीं है, देख लेना, ठीक, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड, राइट ईयर नॉर्मल देख लो, चाइल्ड है, वॉल्यूम देख लो, ठीक है। अब वो चाइल्ड है तो चाइल्ड में 1.3 वाले में मत जाना, क्योंकि उसका रेंज कितना है 0.6 से 1.2। उसके बाद वैक्स एक्सक्लूडिंग द लेफ्ट ईयर, राइट ईयर इज नॉर्मल। अगेन देखो राइट ईयर जो नॉर्मल है, ठीक, उसके बाद लेफ्ट ईयर में वैक्स है, वैक्स होगा तो क्या होगा, वैक्स होगा तो क्या होगा, ईसीबी सबसे पहले कम होगा ना, तो ईसीबी देखो कहाँ है, ई में है 0.1, ठीक है, और उसमें क्या है, सी में क्या है 1.3, तो कौन सा बेटर है, ऑक्लूडेड लिखा हुआ है, मतलब पूरा इंपैक्टेड वैक्स है, तो वॉल्यूम कम वाला लोगे ना, तो बेस्ट सूटेड इज ई, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है ना, लास्ट बताओ, चलो लास्ट बेंच बताओ, लास्ट बेंच दोनों में से बताओ, 9th वाला क्या होगा, चुप रहो तुमसे बोलने, तुम लोग को समझ में आ गया लास्ट बेंच। व्हाट डज दिस ऑप्शन मीन, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, कहार्ट नॉच कहां मिलता है, कुछ समझ में आ रहा है, क्लास में हो क्या मिलता है, ऑटोस्क्लेरोसिस में कहार्ट नॉच, तो उसमें टिम्पेनोग्राम क्या होगा,
ओटोस्क्लेरोसिस, तो कौन सा वाला ग्राम होगा टेम्पोरोग्राम? एएस का माने लास्ट बेंच, मतलब नॉर्मल कंप्लायंस या डिक्रीज कंप्लायंस? डिक्रीज कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो बताओ कौन सा वाला है? बी, ठीक, समझ में आया? तो कभी कभी डिजीज जो है वो ऐसे आपको सेंटेंस में लिखा होगा। आपका हार्ट नॉच किस में मिलता है आपको पता होना चाहिए, ओटोस्क्लेरोसिस में मिलता है। डिजीज उसमें क्या है? फिक्सिसिटी ऑफ द मतलब ऑसिकल्स। ग्राफ क्या मिलेगा? टाइप ए एस, ठीक, इसलिए आपको एस खोजना है इसमें। कैनाल वॉल्यूम नॉर्मल होगा उसमें, ठीक है, ओके। कौन सा वाला? इसमें नॉर्मल लेफ्ट ईयर नहीं होगा, राइट ईयर होगा नॉर्मल। इसमें क्या है? लेफ्ट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब बल्ज होगा तो क्या कम होगा? ईसीवी कम होगा। तो अगर दो हैं, ठीक है, दोनों का ईसीवी अगर नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो ए का भी ईसीवी कम है, बी का भी ईसीवी कम है, कम मतलब नॉर्मल रेंज में 0.6 से 1.5 के बीच में, मान लो सपोज को एक का जैसे दिया हुआ है 0.9 है, एक का 1.3 है, ठीक, एंड तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम है, तो आप कौन सा लोगे? बोथ ऑफ देम, क्योंकि उस पेशेंट के लिए 1.5 भी तो ईसीवी हो सकता है। कितना बल्ज है ये नहीं बताया है, थोड़ा सा बल्ज भी हो सकता है। जब आप 0.9 को ले रहे हो, और अगर मान लो 0.9 है और ये 1.3 है और दूसरा तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, तब तुम 0.9 को लोगे। दैट इज द बेस्ट अमंग दीज। समझ में आया बात? ये बोलना, ठीक है। तो टिम्पैनोमेट्री इज क्लियर, आई होप। ठीक।